आज ये इंडिया एक्सपो मार्ट में ये फेयर शुरू हुआ है, तो इसमें आपकी कंपनी ये कहाँ से आई है, क्या क्या इसमें बनता है और क्या आप कहना चाहेंगे? High Media Laboratories Private Limited is a manufacturing of the microbiology product, molecular biology product, cell biology product, laboratory chemical, and all products required in pharmaceutical company for testing their products. And for vaccine manufacturing, we are manufacturing a cell biology, that is a liquid medium which they are vaccine, different types of vaccine they can manufacture on our culture media. We are also supplying, that is a serum free medium also, serum free. So that is for manufacturing vaccine they require that medium. This is the first time in India we are manufacturing the serum free medium. And all types of product, this is a molecular biology, all instruments we are having. So these instruments require for testing of your all cultures and even corona samples and all this RT-PCR. This is RT-PCR and this is extraction. So these machines are required for the different types of culture testing. We are having a sequencing also, the first time in a food laboratory, and all services we are giving in sequencing. डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट In domestic market, in a microbiology, generally you can see here, everywhere, 100% they are using our product. And in all over world, we are supplying to 150 countries. All this is under our own brand. That is a brand equity we have made in a foreign country. It is an Indian product. What is an Indian product? It is a high media product. It is always there. इस फेयर में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 2 days Fair first. Fair is a good. This year it is the tremendous rush is there. Last year also we were there, but that time the rush was not there. But this year very good rush, because very good response. People they are coming all over world. They are coming here and they are meeting us. They want our product there. Because we are not agent, but still they want to know that is who is your agent and all these things. थैंक यू सर। आप देख रहे हैं फेस वार्ता ग्रुप। फेस वार्ता ग्रुप में आपका स्वागत है। फेस वार्ता यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। जमाने में होते थे, लेकिन ये मॉडर्न डोर है और स्वचालित। जानकारी लेते हैं इस डोर के विषय में, क्या है बताएंगे मैडम? ये जो एक कन्वर्टर टाइप का चल रहा है, इसके विषय में बताइए, क्या मशीन है और क्या काम करती है? Actually now in packaging industry, conveyor belt for dispatch, receiving materials के लिए conveyor belt बहुत यूज़ हो रहा है। और उस बेसिस पे हमने गांधी ऑटोमेशन हमने conveyor belt के लिए स्पेसिफिकली क्लीन रूम डोर्स के लिए ये प्राइम कन्वेयर डोर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपका मटेरियल जब जाएगा, when material will be moving, there should not be any dust coming inside. तो इसलिए डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जैसे ही मटेरियल पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इसके साथ साथ बराबर में देख रहे हैं सेम वही है या इसका कुछ डिफरेंस है? ये बराबर में जो दिख रहा है एक डोर, ये एक्चुअली जो डोर है ये प्राइम कन्वेयर के लिए, जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट यूज़ होता है उसके लिए। अच्छा। ये अलग अलग जगह के लिए अलग अलग एप्लीकेशन वाइज हमने हाई स्पीड डोर मैन्युफैक्चर करते हैं। ये आपका जो डोर है पूरी इंडस्ट्री के अंदर लगाने के लिए है, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन टू पैकेजिंग, जहाँ पे मटेरियल ट्रॉली मूवमेंट है वहाँ पे लगता है। ये डोर जो है ये हमारा प्राइम मेश डोर है। ये आपका बाहर से बर्ड ना आए, कोई पीजियंस ना आए, कोई फिनिश गुड प्रोडक्ट्स को ख़राब ना करे, इसलिए वी यूज़ प्राइम मेश डोर। ये भी सारे हाई स्पीड डोर है, जिसका स्पीड 0.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। इसी के साथ बराबर में एक और ये हैवी सा दिख रहा है क्रेन सा, ये क्या है बराबर में जो दिख रहा है? ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इसी के विषय में ये एक्चुअली हम लोग बोलते हैं डॉक लेवलर जी। और ये लोडिंग बे इक्विपमेंट्स के लिए है।
आपका क्या हो जाता है, आपका फैक्ट्री का जो फिनिश फ्लोर लेवल एक लेवल होता है, बट इंडिया में सारे व्हीकल्स का जो ट्रक बेड है उसका जो हाइट है वो डिफरेंट होता है। तो कुछ व्हीकल का हाइट रोड लेवल से 1500 mm में होता है, कुछ 1300 mm में होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका एक हाइड्रोलिक ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन द आपका फिनिश फ्लोर लेवल और ट्रक बेड लेवल। इसमें कितना वेट की क्षमता होती है जो वेट को करने का? वेट का जो है इसमें हम लोग यूडीएल 15 टन 22 टन मेंटेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग क्लाइंट्स का क्या फोकलिफ्ट का कैपेसिटी है, कि कौन सा इमेज क्लाइंट यूज़ कर रहा है, तो उसके बेसिस पे ये हाइड्रोलिक आपका एक ब्रिज क्रिएट करते हैं बिटवीन ट्रक बेड एंड फिनिश फ्लोर लेवल। थैंक यू। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होगा। मैडम, ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में ये जो लग रहा है इसके विषय में बताइए, अपनी कंपनी के विषय में, जो मॉडर्न डोर का है इसके विषय में कुछ बताएंगे? सॉरी मैं सर, किस तरह का इवेंट है, कितनी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं? सर 25 सितंबर को फार्मा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल फार्मा डे मनाया जाता है। पर इस बार का क्या फोकस रहा उस पर और फार्मा का क्या रहता है? सी आज फार्मा डे एक यूनिक इनिशिएटिव है। आज जैसे आपने सुना, आज इंडिया इज़ थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन सप्लाई टू द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वी आर 14। तो एक बड़ा गैप है जो हम लोग को अभी ब्रीच करना है। सो आई थिंक द फोकस ऑफ द ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री इज़ कि ये उसको गैप को कैसे ब्रीच करें कि हम लोग वैल्यू में भी जैसे बड़े साइज़ में बड़े कंपनी और इंडिया का नाम वैल्यू में भी आए, जस्ट नॉट वॉल्यूम्स। फार्मा एक्सपो में कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा इंडिया की इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा मिल पाएगा? क्योंकि B2B है, बिजनेस है, मशीनरी है, सारी चीज़ें, नए लोगों को भी इसमें कितना सो ये जो शो है हमने 15 साल पहले चालू किया था, बहुत छोटे पैमाने पे चालू किया था। आई थिंक अगर अभी ये देखें 1,500 से ज़्यादा कंपनीज 80 कंट्रीज से कंपनीज आई हुई है। सो ये एक फार्मा, हम लोग हमारा शो भी फार्मा इंडस्ट्री की तरह ग्रो हुआ है। लास्ट 15 साल में आपने फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा होगा, वो ग्रोथ आज हमारे शो में आपको देखेंगे तो हम लोग एक कैटलिस्ट शो है, फार्मा कैटलिस्ट फॉर ग्रोइंग द फार्मा इंडस्ट्री। तो एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शो का, जहाँ पे बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शन होती है, सोर्सिंग होता है, मशीनरी बेच की जाती है। सो वो उस हिसाब से एक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पुश रहा है ओवर द ईयर। ये साल एज ए सेट 1500 से ज़्यादा कंपनीज 1 लाख स्क्वायर मीटर्स के एरिया में एग्जिबिट कर रही है। सो ये एक 3 साल से इतना स्केल का इवेंट हुआ नहीं था, 2019 में हुआ था और अभी 3 साल के बाद हो रहा है। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि एक फार्मा इंडस्ट्री पे बड़ा पुश मिलेगा, सोर्सिंग होगी, मशीन मिलेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट इवेंचुअली आपको ओवर लॉन्ग रन रिडक्शन आएगा। जैसे आपने कहा कि 15 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत की थी, नेक्स्ट 10 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? So definitely, I think I would want to see India as the biggest show for pharma industry in the world, जहाँ पे सारी वर्ल्ड की सोर्सिंग यहाँ पे हो जाए। जैसे अभी बड़े शोज है, यूरोप में है, चाइना में, अलग जगह पे। माय विजन इज इन नेक्स्ट 10 साल में आई थिंक हम इतना बड़ा शो करें कि फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में ही आए सोर्सिंग के लिए, इंडिया बिकम्स अ हब फॉर फार्मा। सर ये तो बस सपोज है कि पर्टिकुलर रेट पे इसको दवाइयाँ मिले जिससे उसको सही आदमी तक पहुंच पाए, लेकिन रिसर्च एंड R&D में दवाइयों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या फार्मा उस पर एक्सपोज कर पाएगा? सी आई थिंक आपको दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकता। आपको सस्ते में दवाई चाहिए और आपको रिसर्च और इनोवेशन करके नई दवाई भी चाहिए। बिकॉज अगर आपको इंडस्ट्री को पूछा, आज इंडिया में जेनरिक इज़ द बिगेस्ट मार्केट, जेनरिक मेडिसिन में हम लोग है जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन इनोवेशन में हम लोग बहुत पीछे है आज वर्ल्ड से। आज सारी इनोवेशन कहाँ पे US में हो रही है, यूरोप में हो रही है, वहाँ पे हो रही है। आज इंडियन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री वो डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और आज देखेंगे इट्स लाइक अब 10 इनोवेशन पे स्पेंड करो, उसमें से एक कोई सक्सेसफुल होगा। सो अगर वो अगर मैन्युफैक्चरर को हम लोग वो उतना जो इन्वेस्टमेंट किया उसका अगर रिटर्न नहीं मिले, तो वी विल नॉट हैव इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। इंडिया में दवाई नहीं बनेगी, हम लोग सिर्फ वहाँ की आके कॉपी करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो होती है उसके प्राइस में और रिटेल प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होगा, उसमें से क्या कहना चाहते हैं आप? सो आई थिंक रिटेल में भी अभी डिस्काउंट्स आ रहे हैं। आई नो रिटेलर्स आल्सो गिविंग 20-30% डिस्काउंट। आई थिंक सो ये सब जगह पे आ रहा है। आई थिंक आई वुड से माय request to industry is rather giving discount at retail level, and it's ये एक
क्या होता है सब्जेक्टिव है कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर आपको दे रहा हो दूसरे को नहीं दे रहा ये काफ़ी फर्क होता है। जैसे एक बार भी में ही आ जाए कि उदाहरण के बाकी तौर सब पर कुछ है। सिट्राजिन टैबलेट को लेते हैं थोक में 2 रुपये से लेकर 3 रुपये के बीच की कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वही मार्केट में 27 to 45 तक है। कितना डिफरेंस है? वो बट उसके जो आपके जेनरिक वर्जन रहेंगे वो अलग प्राइस लेवल पे रहेंगे, उसके में भी 1/10 ऑफ द कॉस्ट पे भी मिल जाते हैं। सो वैसे है आज आपको चाहिए, आपको अगर रिकमेंडेड ब्रांडेड ड्रग है तो आपके पास चॉइस है। आज कस्टमर आज जाके कोई भी गूगल पे भी केमिकल नेम से आप सर्च करते हो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। सो आई थिंक वो एक अच्छा हुआ है कि अभी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में। इंडिया जैसे मार्केट में बड़े मार्केट में एवरी प्रोडक्ट हैज एन ऑल्टरनेटिव। तो इफ यू वांट टू गो फॉर अ ब्रांडेड ड्रग या और अ जेनरिक ड्रग या ईच कस्टमर हैज अ चॉइस नाउ। 3 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं आप? I think anybody who's concerned with pharma industry, healthcare industry, I think this is a must attend show. I'm sure everybody knows about it. जो है वो already right side है, लेकिन फिर भी आज मीडिया फ्रेंड्स के द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ प्लीज़ ये बेनिफिट लीजिए। सारा आपके नए टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, नॉलेज शेयरिंग यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने सबसे हुजू ऑफ द इंडस्ट्री आई है। सो प्लीज़ डू कम ओवर द नेक्स्ट। सर ICM लगातार दवाइयों पर बैन करता चला रहा, बहुत लिस्ट